ہم ریگولر کھاتے ہیں. تو اگین لیٹ می شو یو رائٹ ہیئر. مجھ سے کسی نے ایک بڑی پیاری بات بولی کہ علی بھائی بہت بڑے بزنس مین ہیں, آپ خود فاؤنڈیشن میں آتے ہیں, آپ لائیو کیوں جاتے ہیں؟ تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں وائی آئی گو لائیو کہ مجھے دکھانا ہے کہ لٹرلی کہ یہاں پر بھی لوور میڈل کلاس ہے, یہاں پر بھی تکلیف ہے. یہاں پر جسٹ این ایگزامپل, ایک بندہ یہاں پر $3,000 سے $4,000 مہینے کا کماتا ہے. اگر کسی حال سے میں $2,000 رمضان میں ان کے سیو کر لیتا ہوں تو اس میں برائی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس طرف دیکھیں, یہاں پر تقریباً 400 سے 500 لوگ لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں. آئیے بلال بھائی اس طرف. السلام علیکم. ہمارے یہاں پر جو اہل حدیث ہے, جو اہل سنت کے لوگ ہیں, جو یہاں پر شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں, اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہاں پر آتے ہیں. اور میں بھی کچھ ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں, ان سے بھی آپ کو ملواتا ہوں کچھ دیر میں. بلال بھائی مجھے پیر کی طرف دیں. یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر کوئی 4 باکسز لے کے جا رہا ہے, کوئی 6 باکسز لے کے جا رہا ہے, کوئی 8 باکسز لے کے جا رہا ہے. کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بڑے بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. الحمدللہ سر, آپ بتائیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. How you doing sir? السلام علیکم. How you doing sir? How are you my brother? السلام علیکم. السلام علیکم. How you doing partner? السلام علیکم. السلام علیکم. کیا بولتے ہیں لڑکے؟ الحمدللہ. میری جان کتنا ٹائم ہو گیا, کدھر کہاں بزی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تو ہمارے یہاں پر الحمدللہ کچھ دوست, کچھ ہمارے محلے والے, کچھ ہماری کمیونٹی والے سب کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. Let me show you. میرے خیال سے یہاں پر کچھ آواز کا ایشو ہوا, تو let me take the mic from here. ہماری رمضان کی یہاں پر جو الحمدللہ پاکستان میں ہمارے کراچی میں نمائش میں ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہیوسٹن شہر میں بھی. ندیم بھائی, یہ ہمارے ندیم بھائی یہاں کی پوری سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں. ندیم بھائی کتنے سال ہو گئے آپ کے ادھر؟ 4 سال سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے پاس اس ٹائم پہ اہل سنت کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی 1 منٹ بات کریں سر, مجھے 2 منٹ دیں گے آپ, پھر میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں. بڑے بھائی, یہ ہمارے جو النور مسجد ہے ہیوسٹن کے اندر, ہل کرافٹ, ان کے. السلام علیکم مٹو بھائی, کیا حال چال ہے؟ یہ ہمارے جو لے کے جاتے ہیں سینئرز کے لیے. مٹو بھائی کیا بولتے ہیں, کھانا صحیح ہوتا ہے یہاں پر؟ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 3-4 سال ہو گئے لیتے ہوئے یہاں پر؟ 4 سال سے. کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے لوگوں کو کھانا کھلوانا یا پھر لے کے جانا؟ جیسے آپ لے کے جاتے ہیں 50-60 باکسز اے ڈے, رائٹ؟ کھانے میں کوئی کمی, کوئی تکلیف ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ سب لوگ خوشی ہے, سب لوگ دعا دیتے ہیں. تھینک یو, دعا میں یاد رکھیں. ابھی ہماری انور مسجد جو ہماری یہاں پر ہل کرافٹ کے اوپر ہے, جو لوگ ہیوسٹن میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا, ان کے ون آف دی ٹرسٹی یہاں پر ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں عمر, وہ بھی یہاں پر ہیں, ان کے بیٹے ہیں, تو میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں. انکل السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ, کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں انکل, جیسا انور مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے, کتنا ضروری ہے ہمارے لوگوں کو سپورٹ کرنا, امپاورمنٹ کرنا, کتنا ضروری, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ضروری ہے. یہاں بھی بڑی غربت ہے, جس کا آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کا بھی افطار چل رہا ہے, ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو آپ کھلاتے ہیں. انور مسجد میں بھی اسی طریقے سے روزانہ رمضان میں
21 दिन इफ्तार होता है, तकरीबन 600 से 800 लोग वहाँ इफ्तार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी गुर्बत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा से कहूंगा गुर्बत के साथ साथ मैं हमेशा उनको कहूंगा लोअर मिडिल क्लास। अंकल आपको कई साल हो गए, मैं आपको 20 सालों से तो मैं आपसे मिलता आ रहा हूँ। उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, माशाल्लाह से बहुत रिलीजियस बंदा और वेरी वेल एजुकेटेड, यहाँ का बोर्न एंड रेज है। मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ। अंकल क्या देख रहे हैं कि ये फिरका बंदी की हम लोग बात ना करें और इंसानियत की बात करें, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, बिल्कुल इंसानियत, इंसान अल्लाह ताला ने कहा है कि सारे इंसान की हमने हेल्प करनी है। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ही खिलाता है, और हम भी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह कोई नहीं है, जो आते हैं खा सकते हैं, इफ्तार करते हैं, कोई मसला नहीं। और आपके यहाँ भी माशाल्लाह यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है, हमें अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल-नूर मस्जिद जो माशाल्लाह से जो लोग ह्यूस्टन से नहीं है उनको जरूर मालूम होगा कि अल-नूर मस्जिद कहाँ पर है, हिलक्राफ्ट के ऊपर। आप लोग इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल JDC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जफर अब्बास भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि जो जफर अब्बास काम करते हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं कुछ भी पॉइंट डालूं। तो क्या कहना चाहेंगे JDC के बारे में? जैसे आपने पहले कहा कि अल-नूर के बारे में क्या कहेंगे, तो अल-नूर माशाल्लाह 86 से मेरा ख्याल है अल-नूर, और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रही है। ये हमारे इमाम साहब आ गए। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इमाम साहब, मैं अंकल से बात ही कर रहा था, अल-नूर मस्जिद के बारे में माशाल्लाह बात कर रहे थे। आप लोग इतने सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमें कितना ज़रूरी है मिल बांट के रहना हमारे शहर ह्यूस्टन में, हमारे शहर कराची में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में? ये तो बहुत ज़रूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिदें हैं हमारी, वो मिल बांट के बैठ के वो उनका ज़रिया है कि हम कम्युनिटी को मिल के बिठाते हैं। वहाँ पे लोग जमात के लिए आते हैं, लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और यही वो मकसद है मसाजिद का अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ह्यूस्टन में जो हमारी मस्जिद है अल-नूर मस्जिद, ये एक मरकज़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, इंडियंस आते हैं, इस तरह और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आके जो है वो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इफ्तार का भी बंदोबस्त होता है, और हमारी बहुत सारी किस्म की सर्विसेज हैं, हिफ्स क्लास है, संडे स्कूल है, माशाल्लाह, और हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। जुमेरात का एक इज्तिमा होता है, और फिर हमारे जुमे वाले दिन दर्स होता है। बहुत सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। बड़े भाई एक और कहूँगा मैं बात, आप लोग कितने टाइम से इफ्तारी करवा रहे हैं अल-नूर मस्जिद में? जब से शुरू हुई है 86 से। 86 में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी पैदाइश से लेकर माशाल्लाह से। आपकी JDC के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, मुझे JDC के बारे JDC की मैं आपको जब ये बात हुई है, जैसे मस्जिद की बात हुई, JDC हमारी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो दस्तरखान है यहाँ पर, ये भी JDC शमीम शेखानी फाउंडेशन का है। मैं आपके ऊपर 1 मिनट के बाद आऊंगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे जफर हाशमी साहब है, ये हमारे ट्रस्टी हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हाशमी साहब को सुनने से पहले मैं कहूंगा जो लोग देख रहे हैं प्लीज शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि शहर ह्यूस्टन के अंदर अल-नूर मस्जिद, हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं यहाँ पर जो दस्तरखान चल, 1986 में मेरी पैदाइश हुई है, और 1986 से अल-नूर मस्जिद आपका दस्तरखान चला रही है। कितनी बड़ी बात है कि लोगों को खिलाना। सर क्या कहेंगे आप लोगों को खिलाने के बारे में? हम लोग एक्चुअली अल-नूर जो है वो 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद जो है ना, जब भी 1985 से वहाँ अफ्तार का चल रहा है, और अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 1000 लोग जो है ना वीकेंड पे आते हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, और वीकडेज में तकरीबन 500 लोग आते हैं। और हम लोग कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम करते हैं, ना कि सिर्फ हम लोग वहाँ पे खाना ही खिलाते हैं, उसके अलावा जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसा कि हाफिज़ साहब ने बताया, हमारे यहाँ 10 का होता है, हमारे यहाँ क्लासेस। ऑफ कोर्स अल-नूर मस्जिद में मेरा भी जाना होता है। उमर, what do you want to say, brother? I just want to say that, first of all, we really appreciate Ali Shekhani for giving us more parking at Al-Noor Masjid. Oh yes, I forgot about it. Alhamdulillah. We actually do get a good feedback from a lot of our musallis. They all saying that,
parking is not an issue at Al-Noor anymore. अलहमदुलिल्लाह। एक जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बताऊं, हाफिज साहब आपके पास आने से पहले आज से कुछ हाफिज साहब 2 साल पुरानी बात होगी तो हम लोग अल-नूर मस्जिद के अंदर वहां पर पार्किंग 50 या 70 80 मार्किंग थी, तो समहाउ उसके बिल्कुल बराबर ही बिल्डिंग हमने खरीदी। तो एक दिन मैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया तो मुझे वहां पार्किंग नहीं मिली। तो जब मुझे पार्किंग नहीं मिली, मैंने कहा जब मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है तो दूसरों को कैसे मिलेगी। तो फिर वो जो जगह है आई थिंक 300 प्लस पार्किंग है, वो पार्किंग हमने अल-नूर मस्जिद को यूज करने के लिए दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी नहीं था, अभी उमर ने मुझे याद दिलाया, पर अल्हम्दुलिल्लाह कैसा चल रहा है वहाँ पार्किंग? बहुत अच्छा चल रहा है, नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई है और इसी तरह इफ्तार में जो लोग आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह तरावी में हमारा बहुत रश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पार्किंग का मसला है, ये आपकी मतलब पार्किंग जो आपने हमें अलाउ किया वहाँ पे पार्क करने के लिए, बहुत ज़्यादा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ायदा हुआ। बड़े भाई मेरी कोशिश यही कि मैं क्या कर सकूं। लिटरली मैंने उमर को उस दिन फोन लगाया कि यार आई कैन नॉट फाइंड द पार्किंग, तो लाइक भाई क्या करना है, तो मैंने बोला अपनी पार्किंग ही दे दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो नमाजी हैं हमें सवाब मिलेगा। यू नो हम गुनहगार बंदे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि जब हम मरें हम ऊपर मुंह क्या दिखाएंगे, हमने इंसानियत के लिए क्या करा था। आप बताओ कि आपने जो पार्किंग दी है ना, आप इधर हैं लेकिन आपका मीटर चल रहा है उधर। सही कह रहे सर, सर बड़ी मेहरबानी। कबूल फरमाए अल्लाह ताला सबकी काविशों को, सबकी मेहनतों को, आप ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, पूरी उम्मत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और जो कोई भी काम कर रहा है अल्लाह ताला सबको बरकत दे। बिल्कुल, खत्म करने से पहले मैं एक ही लफ्ज़ कहना चाहूंगा, रमजान पाक मुबारक महीने के अंदर आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे कम्युनिटी को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? रमजान का खास पैगाम ये होता है सब्र, क़ुव्वत, मोहब्बत, भाईचारगी, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एहसास करना और एहसान करना। ये बहुत बड़ी बात। व्हाट डू यू थिंक सर? क्या सेम मैं सेकंड करता हूँ रो भाई ने जो कहा है कि हमें सबको सिखाया जाता है रमज़ान में कि हम लोग पेशेंस और एक साथ किसी कम्युनिटी के साथ यहाँ मिल के काम करना, और हम सब आपके बहुत बहुत मशहूर है कि जो आपने हमें पार्किंग। अरे सर नहीं सर, मैं आपको शायद रोहन फंगल ने बताया नहीं होगा ये बात। कितने टाइम से जानते हैं रोहन फंगल? मुझे जमाने से वुमन कॉम्प्लेक्स है। थैंक यू रोहन फंगल। हाफिज साहब व्हाट डू यू थिंक, वो क्या कहना चाहेंगे आप? रमजान शरीफ चूँकि ये कुरान शरीफ का महीना है जी, तो हमें कुरान पाक से जुड़ने की जरूरत है। बड़ी प्यारी बात कर दी। कुरान पाक से जुड़ने की जरूरत है, हमें दीन से जुड़ने की जरूरत है। हमारी हर परेशानी का यही हल है कि हम कुरान की तरफ आ जाए। बहुत प्यारी बात बोली, जुड़ जाएंगे तो हर परेशानी का हल निकल आएगा। बहुत प्यारी बात कह दी उमर। We all go in as Muslims in Ramadan. We should come out at Ramadan and be a better Muslim. थैंक यू वेरी मच रोहन फंगल जी। कहूँगा एक दिन आप तरावी के लिए आइए मस्जिद में, जी हाफिज साहब के पीछे नमाज पढ़िए, हाफिज साहब से मैंने बहुत नमाजें पढ़ी हैं। जब आपको मजा आ जाए। बिल्कुल तरावी ठीक है हाफिज साहब, इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर मैं जरूर आपके पास आऊंगा। आप लोग आए प्लीज, खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करें लोगों को। ठीक, मैं आपके पास आता हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल, आइए आ जाओ। चलो कम ऑन राइट हियर किड्स, से हाय सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैसेज देना चाह रही हैं। बच्चे क्या मैसेज देना चाहेंगे? Hold on, let me turn the camera on you. Tell me. I'm very proud of you, and one time I when I be big, I really want to be like you. Oh, that's so amazing, kid. That's so amazing. Means a lot. क्योंकि मेरे नज़दीक ये कि अगर आज की जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जब हम आपकी उम्र में थे, हम अमेरिका में नहीं थे, हमारे पास प्रिविलेज नहीं थी, हमारे पास वो आसाइशें नहीं थी, लेकिन हम कोशिश करी कि अब यहाँ पर आकर हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसको आगे लेके जाएं। उसके साथ साथ बेटा एक और मैसेज रमजान के हिसाब से, कम ऑन टेल मी, क्या मैसेज देना है? What do you want to say? You don't want to say anything? Why not? Say anything about Ramzan? Yeah, sure. I'll Chalo, say batao. all Rosa in Ramzan. All the Rosa in Ramadan. All right, thank you kiddos. You've been take care, okay? Thank you बड़े भाई, thank you. वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल चाल है? हाँ हम सब, मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए। ठीक है। ओके, तो अभी हमारे अहले सुन्नत जो है मलून मस्जिद, वहाँ से लोग आए थे। यहाँ पर हमारे पास अहले तशी हो,
جتنے بھی فرقے بندے, لیکن اگر آپ بات کریں شیعہ, سنی, آپ کے بریلوی, دیوبندی, ان سب کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, غلط صحیح ہماری اوقات نہیں ہم طے کریں, جو بھی ہیں یہ سب صحیح ہیں, یہ سب اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے, اللہ پاک ان سب کو برکات دے. یہ سارے کا سارے اپنے اپنے اچھے اپنے حساب سے صحیح کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اسے کیا سیکھتے ہیں. یہ سب کا مقصد اینڈ میں انسانیت ہے, انسانیت کی خدمت کرنا ہے, کہ اینڈ میں انسانیت کے اوپر کام کرنا ہے. تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ رستے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ڈیسٹینیشن جو آپ کو جہاں پہنچنا ہے وہ ایک ہی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, یہ جتنے بھی فرقے بندی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کا مقصد انسانیت ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک میرا اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, جو ہمارے حقوق ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ وغیرہ, یہ سب چیزوں کو کرتے ہوئے ہمارا مقصد یہی ہے. جو میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ کبھی کسی کو کھانا کھلانے سے پیسے کم نہیں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو JDC شمیم شیخانی فری کینسر ہاسپٹل پاکستان میں ہم کھولنے جا رہے ہیں, اللہ پاک مدد کرے گا. جو ہمارے اولڈ ایج ہومز ہیں JDC کے, اللہ پاک مدد کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیب بنی ہے پاکستان کی دنیا کی سب سے بڑی فری لیب, جس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا, جہاں پر کوئی بھی آپ کا کیش کاؤنٹر نہیں ہے, تو اس پہ وہ بھی اللہ مدد کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا 23 کو ARY پہ ظفر عباس بھائی ہمارے لائیو ہوں گے. یہاں پر آئی تھنک امریکہ کے اندر ٹائمنگ ہے 2 to 5, جس کے اندر وہ بتائیں گے پروجیکٹس کے بارے میں. میری کوشش رہے گی کہ شاید میں بھی پاکستان میں ہوا تو میں بھی ضرور اسی کو جوائن کروں گا. اور ظفر عباس کو, آپ کی JDC کو آپ کی مدد, آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. السلام علیکم بہن. He loves the black. He loves the black. So he just came all the way. He said, "Can I have a picture with Ali Bhai?" I said, "Okay." Sir, come on. Come on. Come on, let's take a picture with my little brother. What is your name? Shahan. Sean, what do you like me? Just like, you're like kind to And what people do you and like stuff. in Ali Bhai? Tell him. He's like generous and kind. Right? Yeah, like you can do That's stuff. what you want. You wanna wear black clothes like me? All right. That's good. So, what do you wanna say to all the people, like 100,000 people watching to you? Tell me. That like, you should be kind to everybody, and you should like respect everyone, and yeah, Should respect everyone. So, you wanna be like Ali Sheikhani, or you wanna be better than me? better. Always say things to young generation, sister. Thank you very much. Don't try to be like Ali Sheikhani. Always try to be Always better try than to Ali be Sheikhani, better, because And I think I have a message for you way from Riyadh. There's a family and there's a girl, there's a baby girl named Shahzeen. She's a cancer survivor at the last stage, but she has a bone marrow transplant, very due very soon. They're trying to reach you because she wants to talk to you. And this is a great love, I think, that nobody could ever imagine, that kids at this age, and they feel that there is someone who, irrespective of any discrimination, I don't have words enough, but like if a child who's just 6 years old, and she called me and she said, "Eram auntie, could you please make sure that I talk to Ali uncle?" definitely I'm gonna make it happen. That's something very, I would say, emotional. Imad, give me my personal card. Give me my card. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna give you my personal phone number, sister. You need to talk to Shahzeen. Okay, so give her my personal number, and sister, try to connect me as soon as you can, today, tomorrow, okay? Today or tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum aunty, کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. جی میں آتا ہوں, مجھے تھوڑی دیر دیجیے, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ ٹھیک ہے, مزے میں ہیں؟ آنٹی کتنے سالوں سے جانتی ہیں, زمانے سے؟ ٹھیک ہے, مجھے تھوڑی دیر دیجیے آنٹی, میں آپ سے ملتا ہوں. مجھے میں یوزلی آف کورس ہر جگہ نہیں ہوتا ہوں, لیکن شمیم شیخانی فاؤنڈیشن میں. وعلیکم السلام. آپ کہاں پر ہیں؟ آئیے.
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चाल है? आप क्या सारे वीडियोस देखते हैं? अरे सर बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सब्सक्राइब भी करते अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हैं, बहुत मिस करते कहाँ पर रहते हैं? यहीं रहते हैं? हैं। पीछे आ रही है हमारे, अच्छा, आर्या में रहते हैं। आर्या, गुड गुड। आपके सारे वीडियोस देखते हैं और आप वो इंस्पिरेशन यहाँ पे बहुत अरे सर नहीं सर, मैं आप लोगों का भाई हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनूं सर। आप जैसा बहुत जन को तो लाइफ में इंस्पिरेशन दे लोग। कहाँ से आप? पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं? कहाँ से? इंडिया से। इंडिया के हमारे बड़े भाई दोस्त हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में? मैं खाली पैगाम देना चाहूँगा कि सब अली शेखानी जैसे बने और लोगों की मदद करे, खिदमत करे और इस्लाम का नाम रोशन करे, अली शेखानी जैसा बने। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मम्मी और डैड के लिए करते वैसे ही बहुत बड़ा अजर मिलेगा उनकी मॉम को, जो शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ अली शेखानी। थैंक यू बड़े भाई, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें मुझे दुआओं में याद रखें सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन यहाँ पर जब मैं आता हूँ शमीम शेखानी फाउंडेशन में, मेरी जो सिक्योरिटी है वो सब लोग अंदर नहीं आने देती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस चीज से मिल सकूँ। बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? बताएं क्या हाल चाल? खास ये टाइम पे आपको देखने के लिए आया। शुरू में 10 दिन आया था, लेकिन आप पाकिस्तान में थे। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, आपको मैं इंडिया से फॉलो करता हूँ और मेरा मास्टर्स हो गया। मैं आपको देखते रहा तो आपके जैसा बनने का है। अरे आपके पूरे ब्रॉडकास्ट देखा मैं यूट्यूब पे। आपके जो कोयला गैस स्टेशन था, आपका वहाँ पर वर्क कर रहे थे, फिर वहाँ पर हमें उसको परचेस करिए, पूरा देखा है। आपका पैसे वाला बनने के बाद मसला ये है कि दिल होना चाहिए। वो आपके पास बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ईस्टर्न में जो पैसा कमा लिए, लेकिन क्या है वो लोग करते, लेकिन क्या है अल्लाह को मालूम, लेकिन आप करते मज़हब नहीं देखते। यहाँ पर अभी ठहर के देखा नहीं, हिंदू के मज़हब के भी लोग आए डब्बा ले रहे, मुसलमान भी आ रहे डब्बा ले रहे। तो एक आदमी आ रहा, एक नहीं दे रहा, 2 दे रहे, 3 दे रहे, 4 दे रहे। उसको पूछ रहे नहीं भाई आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, नहीं बोल रहा जी भाई, 4 डब्बे दे रहे। आपके जैसा दिल होना चाहिए। अरे बड़े भाई मेरे भाई देखें, हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर कोई बंदा भूखा है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुसलमान कोई भी हो सकता है, राइट? रमजान के पाक मुबारक हो या फिर रेगुलर डे हो, हम कभी किसी को जज नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास आएगा वो हमारा काम है कि हम उनको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करें। मैंने कभी नहीं पूछा, मेरे खुदा की कसम कई सालों से हो गए, मैंने कभी नहीं पूछा, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं शायद और बेहतर कर सकता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की वजह से। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर जात के लोग, हर बंदा यहाँ पर आएगा, हम उसको बिल्कुल कोशिश करें। जैसे आप खुद इंडिया हैदराबाद से हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फाउंडेशन है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये सिर्फ हिंदू की नहीं है, ये एक फॉर सिख की नहीं है, ईसाई की नहीं, ये इंसानियत की है और हमारा काम सिर्फ इंसानियत पे। सही कह रहा हूँ भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बॉक्सेस लिए भाई? हम ना यही दुआ करना चाह रहे हैं कि आप जिसके लिए काम कर, आपके वालिदा के लिए काम कर, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत करे और जन्नत में अल्लाह से अल्लाह क्या बोलते हैं दर्जात बुलंद करे, आपके वालिद साहब को, वालिदा को, आपके नस्लों को ऐसे ही कामयाब करे अल्लाह पाक से। यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाके रोजा खोलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सलाम अंकल, कैसे हैं आप? कैसा ली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खबर है? ठीक ठाक? आज छुट्टी थी, कल नाइट की थी, बीवी बच्चे साथ हैं। भाभी सलाम अलैकुम, बच्चों क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या चल रहा है अरे अरे बहन कैसे शर्मिंदा कर रही है? मैं तो खाक हूँ, मेरी क्या औकात है? मैं क्या बताऊँ भाई, हमारे तो ड्रीम था कि हम आपके साथ पिक्चर्स लें, बात करें। तो बहन क्या कहना चाहेंगी हमारी जो ह्यूस्टन की, आप ह्यूस्टन में कितने साल से हैं यहाँ पर? 4 महीने। 4 महीने भी बहुत होता है सर, कहने की औकात नहीं है। माशाल्लाह जो आप कराची में जेडीसी चला रहे हैं और यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपकी इतनी टिकटॉक और सोशल मीडिया देख के, मतलब मैं आपका जस्ट लाइक मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली आपकी फैन है। अरे सर, जैसा आपने कहा जेडीसी चला रहे हैं, मैं जेडीसी नहीं चला रहा, मेरी औकात नहीं है, जेडीसी अल्लाह चला रहा है। और उसके नहीं, मैं भी वसीला नहीं हूँ। वसीला सिर्फ और सिर्फ जफर अब्बास का काम है। जेडीसी जफर, हमारे जो जफर भाई की तस्वीर भी लगी हुई है, उनका काम है। मैं समझ रहा अगर 1000 कामों से एक काम मैं कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो भी अल्लाह की तरफ से, राइट? वो जफर अब्बास की मेहनत है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन बनना और जीरो से स्टार्ट करना। जैसे कि अभी मुझे कल कोई बता रहा था कि जब पहली सहरी जफर भाई ने करी थी तो तंदूर की रोटियां थी और कुछ छोटे लोग
10, 20, 25, 50 लोगوں نے मिलकर करा था. आज 40,000 लोग नुमाइश पे कराची में बैठ के इज्जत से खाना खा रहा है. यार ये कोई नॉर्मल आदमी, ये अल्लाह की तरफ से. और 40-45 हजार लोग, हमारे घर पे 500-800 हजार लोगों की दावत होती है तो हम परेशान हो जाते हैं. ये हम बात करें 40-45 हजार वो लोग जो तकलीफ में हैं. और वही रहता था नुमाइश पे अपना पारसी कॉलोनी. अच्छा अच्छा अच्छा. मेरे बिल्कुल तकरीबन 3 गली दूर हम जाते थे. जफर अब्बास को मैं, हमारा भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन अच्छा लोग करते थे वहाँ पे. मैं करता था. जो बात थी अपने बिहाफ से जो था, जफर अब्बास मेरा मतलब बचपन से दोस्त रहा है. और अच्छा। लास्ट आपको जो प्रोटोकॉल दे रहा था वकार हसीम सोल्जर बाजार, हाँ. ये भी मेरे बचपन का दोस्त है. इसने मुझे बोला आपके बॉस को जो है ना वो मैं प्रोटोकॉल दे रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके भाई मेरे पास है. फिर उन्होंने मुझे लास्ट 3 या 4 दिन पहले कॉल किया, बोला भाई वो पहुंच गए हैं. मैंने कहा यार मुझे पता नहीं. फिर बाबर ने मुझे बोला पहुंच गए. जी वकार भाई वगैरह ये सारे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे खास हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी बहन कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगी? बस यही है कि आपका काम जो है वो हम खुशी से देख रहे होते हैं. और सबसे बड़ी बात कि इंस्पिरेशन हम सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवान तक, सबके लिए इंस्पिरेशन है. थैंक यू वेरी मच मेरी बहन. अब यस बहन, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपसे तस्वीर लेता हूँ, ठीक है? इट्स अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग आते हैं, मिलते हैं और अच्छी बात करते हैं, क्योंकि खाना ही खिलाना है. और अगेन मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में फिर मिलूंगा. इफ आई एम गोना बी इन द कंट्री, मैं शायद पाकिस्तान के लिए निकलूंगा बहुत जल्द, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें करनी है. तो आप लोग दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. थैंक यू.